Good morning, everyone. In today's class, I am going to take few questions from complex numbers based on NCERT miscellaneous and one another concept and a type of questions which are not given in your NCERT book but very important. Let's begin with this question. Find real theta such that this complex number is purely real. तो purely real होने का मतलब क्या हो गया? If we have a complex number z as a plus iota b and we say it is purely real, so that would means b should be zero. ये टर्म होनी ही नहीं चाहिए, तब ही ये purely real होगा. So let's begin. Always remember in a standard form of a complex number, iota should not be in the denominator. So let me rationalize this. That is the first important step of this question. Rationalize with its conjugate. Replace iota by minus iota. This is clearly the multiplication of say numerator, and in denominator clearly this is a square minus b square. Open the bracket in a usual manner, so it is 3 के साथ multiply and then further 2 iota sine theta and then iota square is -1, तो ये -4 और साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा. नीचे क्लियरली अगेन आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस प्लस और इसका स्क्वायर ये दे देगा. रियल पार्ट सेपरेट कर दीजिए. ऊपर अगर आप ध्यान से देखें इन द न्यूमरेटर दिस इज द रियल पार्ट, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म which do not contain iota actually, and ये और ये सेकेंड एंड थर्ड टर्म लाइक टर्म है. 8 आयोटा साइन थीटा बन जाएगा. Let me write the complex number in its standard form. Standard form means again it is a plus iota b. तो सेपरेट कर दिया. अब इसके बाद कंसेप्ट क्या आएगा? सिंस z इज प्योरली रियल, रियल होने का मतलब द इमेजिनरी पार्ट शुड बी जीरो. नीचे जीरो हो नहीं सकता, तो साइन थीटा इज जीरो. और साइन जीरो कब होता है? n pi. Recall this when I discussed trigonometry using the graphs also. थीटा जीरो कब आता है? 0 डिग्री, देन 180 डिग्रीज, 360 डिग्रीज या -180 डिग्री, -360 डिग्रीज एंड सो ऑन. और इन टर्म्स ऑफ रेडियंस 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई and minus pi, -2 pi, -3 pi and so on. So compile together the result, theta should be n pi. Your required answer. I am adding up one part for your homework. अगर प्योरली रियल की जगह कहा जाए z is purely imaginary, तो उस केस में इमेजिनरी में आपको क्या करना होगा? इसे 0 के इक्वल रखना रहेगा.
और ये 0 कब होगा? when this is 0, और इससे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज 3/4, साइन थीटा इज प्लस माइनस √3/2. Now, since as per the reduced syllabus, we are not focusing on the journal solution, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको क्या दिया जा सकता है? फाइंड रियल थीटा वेयर से थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2π. तो यहाँ क्वेश्चन को अगर मैं लिमिटेड कर देता कि 0 से 2π में बताओ, तब आपका आंसर ऊपर वाले केस में क्या आ जाता? 0 कब कब होता है? 0 के ऊपर, पाई के ऊपर और 2π के ऊपर. तब ये मेरा आंसर दे देते. और 0 से 2π के बीच में साइन कब होता है? √3/2. और साइन कब होता है? -√3/2. 4 डिफरेंट आंसर्स आने वाले हैं फ्रॉम ईच क्वाड्रेंट. So you have to think in that way. So complete this in your homework. Assume that this limitation is given to you, क्योंकि जनरलाइजेशन वाला पार्ट करिकुलम में नहीं है. Check this out. Now we'll taking few questions from the miscellaneous. So we already have discussed this question. इस तरह के क्वेश्चंस तो हम बात कर ही चुके हैं ऑलरेडी, कुछ उसमें ऐसा नहीं है. So when we have to find iota power 18, 16 को डायरेक्टली अलग कर दीजिए. क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा 1 और आयोटा स्क्वायर इज -1. 1/आयोटा की जब बात करी जाएगी, याद हो जाइए वैल्यू तो अच्छी बात है, नहीं तो रैशनलाइज करा, आयोटा स्क्वायर इज -1 और ये वैल्यू एक्चुअल में आ गई माइनस आयोटा. सो दैट 1/आयोटा की पावर 25 का मतलब माइनस आयोटा की पावर 25, -1 की पावर 25 माइनस बाहर, आयोटा पावर 25. आयोटा पावर 25 को आप ये लिख सकते हैं, ये 4 का मल्टीपल अलग हो गया, एंड दिस इज माइनस आयोटा. यूज these values in the given expression and then simplify. That you can easily do. Before we move ahead, please mark your attendance in the chat box, everyone. Reduce this to the standard form. Remember, this is going to be a one complex number. Finally, we take the LCM, we rationalize whatever method we follow. At the end, this must be some complex number. So inside the bracket, let's follow BODMAS, multiply them. It is a usual calculation inside the bracket like this. So let me use a different kind of a bracket, say over here. ये LCM ले लिया और ये as it is है अभी. Open the bracket, तो 1 plus iota -2 minus minus plus 8 iota over, नीचे भी ब्रैकेट ओपन कर दीजिए. आयोटा स्क्वायर इज -1, बस ये याद रखिए.
so that it is -1 plus 9 iota over 5 minus 3 iota. I'm solving it little bit fast, so if you find any mistake, please do let me know. ये आ गया. इसका मतलब अब आप न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर. सो -3 देन माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा. ये ऊपर -1 को कर दिया मल्टीप्लाई. अब 9 आयोटा से कर रहा हूं. आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस प्लस 36 दे देगा. नीचे कितना आ रहा है? एंड देन आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस प्लस आ गया. सो दैट दिस इज 33 प्लस 31 iota over 28 minus 10 iota. It is better to take half common from the denominator. Reason, ये 14 minus 5 iota आ गया. और अब हम इसे फाइनली, फिर आयोटा नीचे तो हो नहीं सकता, रैशनलाइज करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ. फॉलो द यूजुअल मेथड, यू विल हैव योर आंसर. तो ऑब्वियसली थोड़ा कैलकुलेटिव जाएगा ये. यू विल फाइंड अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन इज गिवन इन योर असाइनमेंट. वहां कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाती है, बट मेथड इज सिमिलर. इन असाइनमेंट अगर आप चेक करेंगे जो क्लासरूम में है, उसमें से पोलर फॉर्म है और स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उस क्वेश्चन उसके भी दिए गए हैं, क्योंकि रिड्यूस्ड के हिसाब से असाइनमेंट को मॉडिफाई नहीं किया है. सो आप उन क्वेश्चंस को बस नोट कर लेना ध्यान से. दे आर नॉट इन आवर करिकुलम. पोलर फॉर्म जहां दिखाई दे और जहां स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, so these two topics are already deleted, so that we will not cover as the time is also very limited. Else I would always recommend and prefer to go for all these topics, but time की limitation है, इसीलिए आप उन्हें बिल्कुल छोड़ दीजिए. Z1 and Z2 आपको गिवन है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स. You are to find this value. तो आप चेक करिए. सिंपल क्वेश्चन है. Just substitute the values of Z1 and Z2. Z1 plus Z2. और इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत इजीली MCQ में कन्वर्ट हो जाते हैं. When I open the bracket and combine like term, one can easily note iota से iota cancel, ऊपर 4 बच गया. नीचे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये आ रहा है 2 minus 1 plus 1. कांस्टेंट तो 2 आ रहा है, और माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा, -2 आयोटा. 2 कॉमन होके कैंसल, 2/1 माइनस आयोटा. मॉडुलस की प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं. ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया ऊपर और नीचे. 2 का मॉडुलस तो 2 ही रहा, और मॉडुलस कैसे निकालते हैं? अंडर द रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर. So this is 2/√2. Finally, your required answer. So same question आप इमेजिन कर सकते हैं
In MCQ, options are given. The value of this expression is 2, 1 by root 2, root 2, none of these, something like that. तो ऑफ कोर्स एमसीक्यू में भी ये बहुत फर्क वो नहीं आएगा कि डायरेक्ट देखते ही आंसर वाले मिलेंगे. यू मे बी रिक्वायर्ड टू सॉल्व देम. 3-4 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, ये ध्यान रखिए. Any doubt to anyone? फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस अगर बात करोगे निकुंज, तो दे आर ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड, बट सीबीएसई में 12th में भी नहीं है वो. Another type of problem already discuss इस तरह की चीजें. Z1 एंड Z2 गिवन है, आपसे रियल पार्ट पूछा है इसका, तो आपको क्या करना रहेगा? सबसे पहले अलग अलग से Z1 इंटू Z2 निकाल लीजिए. आप एक साथ भी कर सकते थे, तो ये करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये वैल्यूज रिप्लेस किया. सो दैट इज -4 प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, and then iota square is -1 minus minus plus. So -3 plus 4 iota. Z bar का conjugate Z1 2 minus iota का conjugate 2 plus iota हो जाएगा. Therefore, now I will consider this expression, और वो हो जाएगा इसके इक्वल. फर्दर इट इज वेरी सिंपल. ऑफ कोर्स आप इसे सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज करेंगे, एंड iota square is -1 over 4 plus 1. So finally -2 plus 11 iota by 5, which can be written as -2 by 5 and plus 11 by 5 iota. फाइनल आंसर क्या होगा? आपसे क्या पूछा था? रियल पार्ट ऑफ दिस. तो रियल पार्ट ऑफ this complex number would be -2 by 5. ये रहा रियल पार्ट पूछा था सिर्फ. Similarly, second part in your homework. Find the real numbers x and y if this is x minus iota y into 3 plus 5 iota. क्या कह रहे हैं? ये क्या है? It is the conjugate of this complex number. ये आपको गिवन है. तो लैंग्वेज को बहुत ध्यान से समझिए, सिंपल कॉम्प्रिहेंशन है. और इन अदर वर्ड, ये किसके इक्वल है? इसका कॉन्जुगेट हो गया -6 प्लस, कॉन्जुगेट का मतलब आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हैं. दैट्स इट. How I am going to solve this? One way, multiply the bracket
ये ओपन कर दीजिए एंड कंबाइन दी लाइक टर्म्स, कंपेयर दी लाइक टर्म्स, रियल पार्ट अलग से, इमेजिनरी पार्ट अलग से. दी अदर वे राउंड कुड बी, ये कर दिया, 3+5 आयोटा यहां आ जाएगा डिवाइड होकर. इसे सिंप्लीफाई किया रैशनलाइजेशन से and compare the real imaginary parts, you will get your required answer. I'll not solve the question now. ये बहुत easy और straightforward है. Check out this question. If alpha and beta are different complex number, alpha is not equal to beta. With modulus of beta is 1, ये given है. You are to find the value of this expression. Basic rule and step is, we know, check out the formula list. First formula यही बताया था. Very simple but very important to understand and apply. Modulus of z का square is z into z conjugate. Very important formula. तो अब हम कैसे इसे अप्लाई करेंगे वो यहां ध्यान से समझिए. कंसीडर जो भी एक्सप्रेशन निकालना है आप उसका स्क्वायर कंसीडर करिए. आई नीडेड दिस वैल्यू, पर मैं इसका जानबूझ के स्क्वायर कंसीडर करूंगा. क्यों? कंपेयर करो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर है. रिमेंबर, इफ अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा. डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो फाइनली आई एम गेटिंग दी कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली. तो कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मैंने किसके इक्वल देखा है? z इंटू जेड बार. ये z हो गया और इसे मल्टीप्लाई कर दो इसके कॉन्जुगेट से. कॉन्जुगेट का मतलब इसके ऊपर ये लाइन आ जाएगी ना ऐसे. फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कॉन्जुगेट. कैसे होता है कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट? रिकॉल अगेन, ये प्रॉपर्टीज बता चुका हूं लास्ट क्लास में. सो कॉन्जुगेट इसके साथ और इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. और फिर कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी से न्यूमरेटर में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. क्यों? z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट इसके इक्वल होता है. तो यूज्ड दिस प्रॉपर्टी इन द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर में 1 का कॉन्जुगेट, वो तो 1 ही रहा, यहां ये लिखा जाएगा. न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर, जिसमें ये चीज को अगर आप ध्यान से सोचो, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट विल बी द z ओनली अगेन. तो ये अल्फा और ये बीटा कॉन्जुगेट.
मेन इस स्टेप तक पहुंचना है। इसके बाद यस आंसर दमन इट्स 1 फाइनल आंसर जो आने वाला है, बट ऑफ कोर्स कैलकुलेशन है वो ये सब इन्वॉल्व है। अब आप यूजुअल मेथड से मल्टीप्लाई मतलब ओपन द ब्रैकेट करेंगे, नीचे भी ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो जाती है ये, माइनस माइनस प्लस, इसे थोड़ा ध्यान से, लास्ट टर्म अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा बीटा कॉन्जुगेट, और फिर इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से सोचें तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, ये बीटा बीटा कॉन्जुगेट विल बिकम मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा का होल स्क्वायर। लेट मी राइट नेक्स्ट टू टर्म्स एज इट इज, और लास्ट टर्म क्या बनेगी, जे अल्फा का मॉडुलस का स्क्वायर जेड जेड कॉन्जुगेट, अगेन यही वाला फॉर्मूला लगाया है, और यहां ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये आपको 1 दिया हुआ था बीटा का मॉडुलस, तो ये 1 है और ये 1 है, इनकी वैल्यूज बस रिप्लेस कर दीजिए, एंड नाउ इफ यू नोट केयरफुली, ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों बिल्कुल सेम आ चुके हैं, दे विल गेट कैंसल्ड आउट, और ये एक्चुअल में 1 के इक्वल आ गया। 1 क्या मैंने जस्टिफाई करा है अभी, ये इसके इक्वल चल रहा था, सारी चीजें इसके इक्वल थी, तो दिस इज यस गौरव, एनी डाउट? ये 1 के इक्वल आया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, ये आएगा एक्चुअल में प्लस माइनस, बट सिंस मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, इसीलिए नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट कर दिया, एंड द रिक्वायर्ड आंसर इज 1। There is the alternative way wherein I can assume alpha as say a plus iota b as a complex number, beta को ले लिया c plus iota d, but that will make this more calculative and complicated. सर Yes. सर हमारा 1 आ तो गया था, फिर हमने लास्ट के 3 स्टेप्स फिर से क्यों किए? कहाँ गया था 1? आप चेक करिए, आपके पास स्क्वायर चल रहा था, मैंने इसे कंसीडर करा था, जबकि निकालना ये था, तो अभी इसके बाद जब स्क्वायर लगा होता है तो स्क्वायर जब सिंप्लीफाई होगा तो यहाँ प्लस माइनस देगा ये, यस सर। और फिर मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव को रिजेक्ट भी तो बताना रहेगा, इसीलिए एक्चुअल में ये दोनों स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। सो अगेन 2 बार कम से कम लिखना रहेगा, प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज ध्यान रहने वाली है। Check out this question. Find the number of non-zero integral solutions. ये अगेन एमसीक्यू बेस्ड आराम से बनते हैं इस तरह के, आप चेक करिए कैसे निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड, ये होता है, तो बस ये क्या हो गया,
और इस पूरे की पावर x चल रही थी। मीन्स ये आ गया √2 की पावर x। √2 का मतलब 2 की पावर 1/2। Do not forget laws of exponents. x की पावर m की पावर n, x की पावर mn होता है। 7th क्लास का लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाया। इफ बेस आर सेम, पावर्स आर इक्वेटेड, और इससे ये सिंप्लीफाई हुआ और x आ गया एक्चुअली 0। सो व्हाट इज द आंसर टू द क्वेश्चन? What is the answer? जीरो। नो। अब 0 मतलब किस तरह से? ये वाला 0 नहीं होगा मेरा सॉल्यूशन। यस फाइंड सर, जीरो नंबर। यस, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो। ये इसका सॉल्यूशन तो है, पर हमें पूछा था नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। सो देयरफॉर इट हैज गॉट नो सॉल्यूशन एज पर द क्वेश्चन, क्योंकि नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए था। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इसके? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं 0, नो सॉल्यूशन। Now this is the last type of variety which is very important. Look at the questions on your screen. Very important type. ये एनसीईआरटी में नहीं है, असाइनमेंट में मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। x is given, you need to find the value of this expression. Of course, one way is आप x की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए और गो ऑन सिंप्लीफाइंग। तो ये इसकी पावर 4 है, फिर रख दिया, एंड बट वन नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन। ये पावर 4 निकालना इज एक्चुअली वेरी कैलकुलेटिव। फिर ये कैलकुलेटिव है, फिर आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना, इट इज गोइंग टू बी वेरी टीडियस टास्क। नो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, हम ऐसे नहीं करेंगे बिल्कुल। वी विल अप्लाई अ सिंपल लॉजिक टू गेट दिस आंसर। और वो कैसे स्टार्ट होता है, चेक दिस आउट। ये x गिवन था, आयोटा की टर्म सेपरेट कर दो। क्यों किया है अभी समझ आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दे देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। RHS का स्क्वायर कितना आएगा? 2 आयोटा का स्क्वायर कितना होगा? -2। -4। तो x स्क्वायर -6x और ये इधर आकर +13 हो जाएगा। तो ये एक रिलेशन मैंने क्वाड्रेटिक जो निकाला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन से जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल आया है, ये इससे डिवाइड कर दो विच एवर एक्सप्रेशन वी नीड टू फाइंड, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है। अब वही नेचुरल क्वेश्चन शुड अराइज कि क्यों करेंगे ये डिवीजन। अभी डिवीजन करने दो, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा
why it is so. एंड डिवीजन आपने क्लास 9th एंड 10th में स्टडी करा है, तो आई एम मूविंग क्वाइट क्विकली. कैसे करते हैं? यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म को डिवाइड करा लार्जेस्ट वाली, और ये देगा x4, देन माइनस 6x³ प्लस 13x². I have to believe that every one of you know how to divide. Otherwise मैं 11th तो कम से कम नहीं पढ़ा पाऊंगा, सिर्फ 8th 9th 10th में ही उलझ के रह जाएंगे. So please, अगर नहीं आता डिवीजन तो रिवाइज इट फ्रॉम क्लास 9th टेक्स्ट बुक्स. x4 से x4 कैंसल, दिस विल गिव मी 2x³, 13 माइनस का है तो 9x². Copy the remaining two terms. Next divide किससे होगा? इसे इससे डिवाइड करा, it is plus 2x. So 2x से डिवाइड कर देते हैं, तो this will be 2x³ minus 12x² plus 26x. Sign will change. ये कैंसल, this is 3x² एंड ये कितना आएगा? माइनस 8 करा है तो 16 आ रहा है, एक बार देख लो प्लीज. एंड देन प्लस 44 एज इट इज. सर 18 आएगा. 18, 26, yes sorry this is 18, और फाइनली प्लस 3 के ऊपर जा रहा है 3x² माइनस 18x एंड प्लस 39. चेंज द साइन एंड यहां बाई चांस ये दोनों ही कैंसल और रिमाइंडर आ गया 5 के इक्वल. अब एक सिंपल रूल याद दिलवा रहा हूं क्लास 5 का. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. रिकॉल 5th में 6th में करा हुआ है, बट यहां डिविडेंड क्या था? ये था. एग्जाम में प्रॉपर लिखकर बताना है इसका आंसर क्वेश्चन का 5 है, बट क्यों है वो एक्सप्लेनेशन इज इंपॉर्टेंट. डिवाइजर आपके पास क्या था? x² माइनस 6x प्लस 13. क्वोशेंट आपने निकाला, ये रहा. लास्ट 1 मिनट टू गो. ये और रिमाइंडर है 5 के इक्वल. ये वैल्यू 0 के इक्वल है, तो 0 इंटू एनीथिंग विल मेक इट 0 एंड वी लेफ्ट विथ 5. और यही तो आपको वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी. So note these steps carefully, very important. You will get your required answer as 5. So for your homework, check it out. Very similar question. And another very similar question. So 2 questions will be the part of your homework. थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ, तभी बेनिफिट है. प्लीज मार्क योर अटेंडेंस एवरीवन एंड देन यू कैन लीव द क्लास. थैंक यू सर. या वेलकम. Thank you, sir. Have a good day, sir. गुड डे. Thank you, sir. या वेलकम.